Hello, children. You are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Kadavara. I am Amit Toshniwal, your economics teacher. This video is for class 12th. Subject is economics. Chapter 6 Forms of Market and Price Determination, Part 3. We must know the evolution of theories of price determination concept, of price equilibrium, and effect of changes in demand and supply on price equilibrium, and what is the importance of time element. Then only we can go for the topic price determination under perfect competition in two runs, short runs and long runs. So let us understand the meaning of these theories. First theory is classical economist, and they support supply theory, or you can say cost of production theory. So classical economist Adam Smith, who was the father of this classical economics, Ricardo and their disciples, followers. So they assumed that they given more importance the cost of production of the commodity, and this only determines the price. So cost of production means if the cost of production is high, then naturally price will be kept high, and if the cost of production is low, then adequate supply will be done, and they will get more profit. So this cost of production theory is only the equivalent theory to theory of supply. Then second, Austrian economist, they believed in demand theory or utility theory. So they believed that if consumer finds utility out of the commodity, then he will demand, and demanded commodities can be charged at higher rate, and their prices can be fixed at higher rate. So this is demand theory or utility theory. And third theory is demand and supply theory. So Marshall, so he has got two. So he believed that, means what the other two said, means for supply theory and demand theory, means classical economists and Austrian economists. So he did not believe these two economist views. So he believed that none of them alone can determine the price. So price determination is dependent on two pillars of economics, and demand and supply equally play vital role, and it is the interaction of demand and supply which determines the price, and it only balanced an equilibrium between the contracting pressure of two opposite sides. So one of them is demand and the other one is of supply. Okay. अब ये बात तो हो गई यहाँ पर कि प्राइस इक्विलिब्रियम, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है. क्या चीज़ बाकी है? अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है. बिफोर दिस वी हैव टू स्टडी मीनिंग ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम. तो दो फैक्टर्स रहते हैं इसमें, डिमांड फॉर द गुड्स एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स. So demand for goods means utility of the commodity for consumers,
and if it provides him more utility, then naturally consumer will purchase it, buy it and demand for that, and then he will be ready to any price, pay any price for that commodity. So this theory is regulated by the law of demand and marginal utility theory. And the other one, supply theory. So it comes through manufacturers, producers and sellers. So every individual entrepreneur or firm cannot individually affect the price of product, and they cannot rule the market all alone. So why it is? Because every producer is free to get entry into the market and to be exit from the market. But more and more sellers and manufacturers will enter into the market if they find that the cost of production is low, supply is more profitable, and they are earning more profit. So you can say marginal cost will be the minimum limit of the produced goods, and then supply side is determined by the minimum limit. And interaction of these two, demand and supply curves. So you already know that demand curves normally slopes down. When other things being equal, the demand for the commodity is higher at the lower prices and less at the higher prices. Simple. Law of demand. Chapter number 4. You can refer previous videos. And what about the supply curves? Supply curves of a commodity slope upwards. It means seller would like to sell larger quantity at higher prices and will sell less at the lower prices. So this is the general condition from both the sides. So price equilibrium take place by the interaction of demand for the commodity and supply of goods. For this, you can have a glance of this table. Prices of rice per kg, quantity of rice demanded and quantity of supply. You see prices 25, 24, 23, 22, 21, first row. Quantity demanded. When prices are high, quantity demanded are low. 25 रुपये है तो 50 किलो केवल मांगा जा रहा है, 24 में 80, 23 में 120. मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है. और सप्लाई साइड में क्या हो रहा है? जब प्राइस हाई है तो सप्लाई भी ज़्यादा हाई है, और जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएंगी सप्लाई भी कम होती जाएगी. और एक समय ऐसा आएगा व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट इक्वल. So that will decide the price of rice. So now the price of rice is all around rupees 23, where the quantity demanded of rice and quantity supplied of rice are equal. Okay? So what are the assumptions for this? The first one is demand का should always have a negative slope. यानी कि ये आपने पढ़ा हुआ है पहले डिमांड वाले चैप्टर में कि ये स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड रहता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और सप्लाई कर्व हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव स्लोप, यानी कि अपवर्ड, ओरिजिन टू द राइट. और थर्ड चीज़ इसमें और जोड़ लो तुम, इफ़ द डिमांड इंक्रीजेज मोर देन द सप्लाई, द प्राइस विल इंक्रीज, एंड इफ द सप्लाई इंक्रीजेज मोर देन द डिमांड, प्राइस विल फॉल. सिंपल. भट्टे के भाव बिक जाएगी चीज़, डिमांड नहीं है, सप्लाई पेल के है, क्या होगा? भट्टे के भाव. अब तो भट्टा भी बहुत महंगा है, बट ये एक कहावत है, कहा जाता है ऐसा. तो सप्लाई ज़्यादा और डिमांड मार्केट में नहीं है उसकी, तो क्या होगा? सस्ता बिकेगा. और डिमांड है, सप्लाई एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो फिर प्राइजेस हाई होंगे, क्योंकि सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड इन शॉर्ट रन. नॉट पॉसिबल. एक दो दिन का सवाल नहीं है ये. हाँ, लोकल मार्केट में पॉसिबल हो सकता है,
When it's local market, there is possible to adjust supply, but in long run, for infrastructures, it is not possible at all, because units or manufacturers cannot be born. They cannot take birth in a day. एक दिन में पैदा नहीं होते मैन्युफैक्चरर्स या चीज़ें. It takes time to establish an industry or an organization. समय लगता है भैया, तो ये संभव नहीं होगा. ठीक है, तो 3 बातें ध्यान रखना है. पहला नियम डिमांड का, दूसरा सप्लाई का, और तीसरा जो तो है, ये सिंपल सी बात है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई से, प्राइस ज़्यादा रहेगी, मतलब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई. और सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, इसका मतलब भट्टों के भाव बिक रही, कोई पूछ नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा उसको, लेकिन है अवेलेबल, मना के दे रहा है, भैया ले जाओ, सेल लगा पड़ी है, ले लो हमसे. ठीक है, अब आते हैं अपन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. अब ये जो 2 चीज़ें तुमने अभी इसमें सुनी हैं, वो बहुत ध्यान से दोबारा एक बार फिर से सुनना, तभी तुम इसको समझ पाओगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में. अब पढ़ो क्या लिखा है उसमें. Under perfect competition, the price of commodity is determined by the industry as a whole, and the individual firms have to accept that price and adjust its output accordingly. It means this is the outcome of an economy, not by an individual firm or producer. Ultimately, they will have to accept. It means if they want to earn more profit, they will have to keep their cost of production at the lower level 100%. होना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, बिक जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकलेगी उनकी. फिक्स्ड कॉस्ट तो है भैया, चाहे तुम बनाओ चाहे मत बनाओ, वो तो लगना ही लगना है, उसको बदल नहीं सकते. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यानी मेंटेनेंस कॉस्ट, यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकला तो मार्केट से बाहर होने में देर नहीं लगेगी. कब तक बेयर करेंगे लॉस? नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लाइन विद द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री and attains equilibrium at the level of production where marginal revenue and marginal cost both are equal to each other. So every firm is a price taker and not a price maker. प्राइस डेटा खुद नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए. प्राइस मेकर क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि प्राइस मेकिंग कौन करेगा? डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स. हाँ, प्राइस टेकर रहेंगे वो. प्राइस टेकर क्यों रहेंगे? आफ्टर coming at the point of equilibrium, they can hold on either price or supply. कोई 2 में से एक पे अधिकार होता है मैन्युफैक्चरर का, दोनों पे नहीं हो सकता. यदि वो दोनों को साधने जाएंगे तो घर के रहेंगे ना घाट के, धोबी के कुत्ते बन सकते हैं वो. तो any one of these two can be influenced by the manufacturer. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा फिर इसमें. फिर भी existence of a single uniform price in the market is the most important criterion of perfect competition, and this is determined by the market forces of demand and supply. इसके अलावा ये 2 पिलर हैं भैया, डिमांड और सप्लाई 2 पिलर्स हैं जिससे ही सब कुछ डिसाइड होता है. अकेला के प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं, और भी कई चीज़ें इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें तुम देखते सुनते समझते हो, वो सारे के सारे जो हैं इन दोनों चीज़ों से हैं. अभी का प्रेजेंट सिनेरियो देख लियो, देख रहे हो करंट सिनेरियो क्या है अभी. क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है कोरोना काल में, क्या हो रहा है? वाट लगी पड़ी लोगों की. Until and unless agriculture is come into flourish, कुछ नहीं हो सकता. Not possible. When the sources of income are choked, consumption is not done, then how can demand be created? Not possible. तो डिमांड सबसे अल्टीमेट फैक्टर है, सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है उसका, बिना उसके संभव ही नहीं है, असंभव. देन कम्स टू सप्लाई. यदि सप्लाई को मैनेज करना चाह रहा है मैन्युफैक्चरर तो प्राइस पे उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, और यदि प्राइस लेना चाह रहा है तो सप्लाई पे अधिकार छोड़ना पड़ेगा. कोई एक
दोनों चीज़ें संभव उसके लिए नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। अब जो बात अपन करना चाह रहे हैं आज की, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो ये दो तरीके से होता है, जैसा हमने वीडियो के शुरू में बता दिया, शॉर्ट पीरियड यानी कि शॉर्ट रन के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए। तो ये बात भी हम अभी छोटी सी कर चुके हैं। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को एडजस्ट करना किसी के बूते में नहीं है, किसी के बूते में नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल लोकल मार्केट के लिए हो सकता है या वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के लिए पॉसिबल बना सकते हैं, बस। तो पहली लाइन लिखी हुई है इसमें, देखो, इन अ शॉर्ट पीरियड मार्केट अ फर्म कैन नॉट एडजस्ट हिज सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड देयर मे बी एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, डेफिनेटली। सप्लाई मान लो नहीं थी और आज डिमांड है, तो क्या होगा, महंगा बेच दो, 20 की चीज़ 40 में, 50 में, 100 में, जिसको लेना होगा ले लेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। उल्टा कर दो इसका, दूसरी कंडीशन बना लो, सप्लाई बहुत हो गई, डिमांड है ही नहीं मार्केट में, आई नहीं, मतलब बायर्स कम है, क्या होगा, लॉस, सस्ते में बेच के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को भी पेमेंट करना है, यदि नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे ना भैया वो पांचों फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर तो गया भाड़ में, सबसे आखिरी आएगा वो, वही उद्यमी आदमी, उसी ने सब ये सब कुछ किया, उधम उसी ने मचाया है, तो उसका तो छोड़ दो, लेकिन बाकी के चार, जैसे ही तैयार हुआ माल मार्केट में आया, स्टॉक से सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, मार्केट में पहुंचा, खड़े हैं भैया हमारा पैसा, दे वॉन्ट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दे वॉन्ट देयर रेम्यूनरेशन, उनको चाहिए, फिर क्या करोगे, नहीं होगा पॉसिबल, तो लॉस उठाना पड़ेगा। तो प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एज इज एग्जिबिट बाय द डायग्राम। देख लो बाजू में बना हुआ है डायग्राम, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, एवरेज रेवेन्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जहाँ इंटरेक्शन है वहीं पर जा कर के तुम्हारा प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आ जाओ तुम दूसरे उस पर, लॉन्ग पीरियड में ग्राफ सेम बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर चला गया, तुम देख रहे होगे ऊपर, फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर जो प्राइस तुम्हारा डिटर्मिनेशन है शॉर्ट पीरियड में, वो कहाँ पर है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन लॉन्ग रन में जब तुम देखते हो तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर जाकर रुक जा रहा है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोई स्कोप नहीं होता इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट का या एबनॉर्मल लॉस का, क्योंकि सप्लाई कैन बी एडजस्टेड इन लॉन्ग रन, बट प्रोड्यूसर विल रिसीव इट्स एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन वहां पर क्या कंडीशन है, शॉर्ट पीरियड में मे रिसीव मोर देन इट और लेस देन इट, ये दोनों पॉसिबिलिटीज संभव हो सकती हैं, ठीक है। So this is the end of video here, and in next video we shall discuss about the other market forms in perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. So keep watching, keep seeing. Thank you.